And ultimately what the East, they showed their upper hand, and now they have East have won by 6 wickets. Very shortly we will have the presentation ceremony, but in the meantime we are showing the highlights to you. And this time shot of a good length and played it firmly towards extra cover. Played it away from the line of the ball. Misfielding and 4 runs. Preferring the square leg area and slowly going into the fence. Use of the soft hands down to fine leg. You can see the flexibility with which it was executed. Keeping very low, plumped in front of the stumps and out LBW. Left arm spinner into action. And this time it is over the fence for a 6. Going off the front foot and driving it to extra cover. Preferring the same area. That is a favorite area as far as Saurav is concerned. Use of the rolled wrist. Taken on the half volley. Drop catch. And a boundary. This time drives it straight past the bowler. Now the square leg area is being concentrated. Going down to fine leg for 4 runs. And Saurav at his best, presenting that beautiful art of batsmanship, misfielding, resulting into 4 runs. Now going to third man, a futile exercise for the fieldsman. And on drive this time. And Saurav acknowledges by raising his bat. Firmly struck to long on Agamkole into his own element. A lofted shot. And he is out just on the edge of 30-yard circle. Edged into the gloves of the wicketkeeper. Nishant Ponga was the bowler. Swung it to square leg. And a possible chance. A low one. Going for 4 to third man. Again a lofted shot. Going over the fence. Off the back foot he plays it. And a run out. Manoj Mani just calling for the third umpire's verdict. Not out flashes on your screen. And one more boundary. It is going in the air. A valiant effort by the fieldsman at mid-wicket. Kohli makes use of his feet and looking very happy as he scored the winning runs with a sixer. And you can see the cricketers embarrassing each other, expressing their joy, raising their stumps, making a huddle. And what glorious moments for them. They have really earned it and they deserve to win. Now we are ready with the presentation ceremony, and let us go to Prashant Sanger, who is down there at the center. इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग आईटीसीएफ का महत्वाकांक्षी आयोजन संपन्न हुआ। तमाम सारे चेहरे सामने आए। प्रतियोगिता की सफलता बताती है कि ये चेहरे किस तरीके से आगे आए हैं। बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। अब वक्त है उन विजेताओं को सम्मानित करने का। ये भी वक्त बड़ा है। छोटी छोटी प्रतिभाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं उनको सम्मानित किया जाना है। चलिए उन शख्सियत से मिलते हैं जो इन प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगी। मेरे साथ हैं
प्राइज सेरेमनी के लिए मिस्टर पीयूष राणा, फाउंडर सेक्रेटरी जनरल आईटीसीएफ इंडिया, मिस्टर नरेश गिरधर, डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंडियन क्रिकेट एकेडमी, मिस्टर राजेश शर्मा, जनरल मैनेजर इवेंट आईटीसीएफ, साथ में है मिस्टर गिरीश राणा, जनरल सेक्रेटरी 2020 क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ गुजरात, मिस्टर संदीप आर्या, डायरेक्टर आईटीसीएफ इंडिया, और मिस्टर राहुल आंग्रे, मैनेजर फाइनेंस आईटीसीएफ। और अब बात उन शख्सियतों की जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। बतौर प्लेयर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। जी हां, एप्रिसिएशन अवार्ड आईटीसीएफ की तरफ से विशेष रूप से दिए जा रहे हैं उन व्यक्तित्वों को जिन्होंने सहयोग प्रदान किया इस बड़े आयोजन को सफल बनाने में। मैं नाम ले रहा हूं क्रमवार। मिस्टर राजेश शर्मा, जनरल मैनेजर इवेंट आईटीसीएफ इंडिया, ये एप्रिसिएशन अवार्ड है, सम्मानित कर रहे हैं उन शख्सियतों को जिन्होंने इस इवेंट में यानी इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग में बड़ा काम किया। मिस्टर राजेश शर्मा, जनरल मैनेजर इवेंट आईटीसीएफ इंडिया। आपके बाद पंकज मिश्रा, क्रिक 5 काउंटी हेड। लाइव स्कोरिंग चलती है क्रिक 5 पर आईटीसीएफ के तमाम आयोजनों की, और उसको लीड करते हैं काउंटी हेड क्रिक 5 मिस्टर पंकज मिश्रा। मिस्टर संदीप आर्या, डायरेक्टर आईटी, मिस्टर संदीप आर्या, और मिस्टर गिरीश राणा, कन्वीनर 2020 क्रिकेट एसोसिएशन गुजरात। मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, अब ऑफिशियल्स की बात, अंपायर्स मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, राजस्थान के रहने वाले, बेहतरीन अपने काम को अंजाम दिया। बतौर अंपायर कोई विवाद प्रतियोगिता में नहीं सामने आया है। आपके बाद नाम पुकार रहा हूं मिस्टर नवीन माने। नवीन माने महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। नवीन माने के बाद नागपुर के मनोज वाणी के बाद मनोज वाणी, यस, संतरों की नगरी नागपुर, और वहां के कुशल अंपायर मनोज वाणी। और अब राजस्थान के एक और बाड़मेर जिले के रहने वाले गिरधर राठौर। और इसके बाद कुछ और शख्सियतें, ट्रांसपोर्ट मैनेजर आईटीसीएफ इंडिया मिस्टर मोहित कुमार, और मैनेजर स्टोर्स नरेंद्र धामेजा, और ऑनलाइन मैच स्कोरर आईटीसीएफ इंडिया मिलिंद गोरे। और इन्हीं के साथी हैं मैच स्कोरर आईटीसीएफ इंडिया राहुल शर्मा। और ग्राउंड कंसल्टेंट आईटीसीएफ इंडिया मिस्टर यशपाल मलिक। अहमदाबाद का ये खूबसूरत सरदार पटेल स्टेडियम, इसकी देख रेख रख रखाव प्रतियोगिता लायक बनाना इनका काम और दायित्व बढ़िया तरीके से निभाया यशपाल मलिक ने। और मैनेजर फाइनेंस आईटीसीएफ मिस्टर राहुल आंग्रे। तो शानदार प्रतियोगिता इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग संभव नहीं थी इन सारी शख्सियतों के बेहतरीन काम के बिना। बढ़िया काम देखने को मिला, लेकिन ग्राउंड पर जो देखने को मिला 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। छोटी छोटी उम्र के ग्रामीण बच्चे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, देश भर में दुनिया भर में डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण जहां जहां होता है वहां सभी ने इन प्रभावित प्रतिभाओं को जबरदस्त तरीके से निहारा और सराहा। चलिए अब बात करते हैं मुकाबलों की। 30 तारीख को पहला मुकाबला खेला गया था। मैन ऑफ द मैचेस हम डिक्लेयर कर रहे हैं, नाम पुकारेंगे क्रमवार। मैच नंबर 1 वेस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे विक्रम गोयल, विकेट कीपर बैट्समैन।
विक के नाम से जाने जाते हैं विक्रम गोयल, उस मुकाबले में 49 रन बनाए थे और विकेट के पीछे 2 बढ़िया शिकार किए थे। मैच नंबर 2 नॉर्थ वर्सेस ईस्ट, मैन ऑफ द मैच रहे नॉर्थ जोन के कप्तान सोबस जोवन, 35 रन और 4 विकेट। सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन जरूर परास्त हुई, लेकिन सोबस जोवन ने जबरदस्त काम किया बैट और बल्ले से, दोनों से। दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। मैच नंबर 3 ईस्ट वर्सेस वेस्ट, मैन ऑफ द मैच नो डाउट अगम कोहली, 45 रन 3 विकेट। इस खिलाड़ी ने कई मैच अपनी दम पर सिंगल हैंडेड अपनी टीम के नाम किए हैं। मैच नंबर 4 साउथ वर्सेस नॉर्थ, सोबस जोवन एक बार फिर मैन ऑफ द मैच, अर्धशतक लगाया, 54 रन बनाए और 1 विकेट हासिल किया। मैच नंबर 5 यह है सोबस जोवन। मैच नंबर 5 साउथ वर्सेस ईस्ट, एक बार फिर नाम लेते हैं अगम कोहली मैन ऑफ द मैच, 62 रन 4 विकेट। अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए तो यह प्रतियोगिता का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, 62 रन जो अगम कोहली के नाम रहा है। मैच नंबर 6 नॉर्थ वर्सेस वेस्ट, मैन ऑफ द मैच एक बाएं हाथ का आकर्षक बल्लेबाज रमनदीप, 48 रन 2 विकेट। और इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले, पहला सेमीफाइनल नॉर्थ वर्सेस वेस्ट, मैन ऑफ द सेमीफाइनल फर्स्ट राहुल शर्मा, 43 रन बनाए। यह खिलाड़ी चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव से आता है, लेकिन जबरदस्त पारी खेली, नॉट आउट 43, 43 रन की नाबाद पारी मैच विनिंग नॉक कहलाएगी। और सेकंड सेमीफाइनल ईस्ट वर्सेस साउथ, एक बार फिर मैन ऑफ द मैच सिंगल हैंडेड अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया अगम कोहली, 62 रन 2 विकेट। यह प्रतियोगिता में लगातार दूसरा अर्धशतक था अगम कोहली का। और फिर आया फाइनल मुकाबला, वो मुकाबला जिस पर निगाहें तभी से थीं जब इस पूरी प्रतियोगिता का सपना गढ़ा गया था। आईटीसीएफ के द्वारा इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग का यह आयोजन और फाइनल मुकाबला रहा था ईस्ट जोन वर्सेस वेस्ट जोन। इस प्रतियोगिता को जीता निश्चित रूप से ईस्ट जोन ने, आपने सभी ने देखा, लेकिन इस प्रतियोगिता को जिताने में सबसे बड़ा काम किया 16 वर्ष के एक खिलाड़ी ने। जी हां, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला वो खिलाड़ी, कुछ देर पहले आपने उसको निहारा होगा खेल के जरिए, सौरव गर्ग, मैन ऑफ द फाइनल, 66 रन बनाए इस होनहार 16 वर्षीय खिलाड़ी ने। 53 गेंदों का सामना किया, टारगेट चेज कर रही थी इनकी टीम, सामने उनके सीनियर अगम कोहली मौजूद थे। बावजूद इसके तमाम प्रेशर को दरकिनार किया, 13 चौके लगाए और मैच विनिंग नॉक अपनी टीम को फाइनल जिताकर लौटे। वेल डन सौरव गर्ग। और अब व्यक्तिगत पुरस्कार, विभिन्न विधाओं में जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहले बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रमनदीप सिंह, वेस्ट जोन के 157 रन बनाए इन्होंने, 5 पारियां खेली, 1 अर्धशतक, 157 रन। प्रतियोगिता के टॉप क्लास बल्लेबाजों में एक रहे, बाएं हाथ के आकर्षक बल्लेबाज। और अब बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग का सबसे बेहतरीन गेंदबाज तय किया गया है राजीव सरहंदी को। प्रतियोगिता में 4 मुकाबले खेले राजीव सरहंदी ने, 8.72 के औसत से 10 विकेट हासिल किए। अगर फाइनल मुकाबला वे खेलते तो विकेट की तादाद कहीं ज्यादा होती। और सबसे बड़ा पुरस्कार जिसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले विकेट के पीछे काम करने वाले को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता। मेरा हमेशा से मानना है कि विकेट के पीछे खड़े होने वाला व्यक्ति पूरे मैच को लीड किया करता है, बड़ा दायित्व निभाता है। तो बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग पहले संस्करण में तरुण पंचाल, 10 कैचेस लिए,
और 5 स्टंपिंग की। 15 शिकार 5 मुकाबलों में इस युवा खिलाड़ी ने हासिल किए और चयन समिति द्वारा इनको बेस्ट विकेटकीपर घोषित किया गया है। और अब वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आईटीसीएफ के तमाम आयोजनों में शानदार प्रदर्शन करने वाला, बार बार उनका नाम पुकारा जाता है, लेकिन हर बार और ज्यादा सम्मान के साथ और ज्यादा तालियों के साथ में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगम कोहली, ईस्ट जोन। और अब बारी उस टीम की जिसने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज का दिन उनके नाम नहीं रहा। जी हां, रनर्स अप ट्रॉफी जो इस प्रतियोगिता की उपविजेता रही, इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के उपविजेता, जी हां, वेस्ट जोन। और उनके कप्तान को मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा, निशांत मोंगा, प्लीज आए। निशांत से हम बात जरूर करना चाहेंगे। निशांत प्लीज आए। निशांत, हार्ड लक, आज दिन आपके नाम नहीं रहा। स्टार्टिंग से पहले हमारा एक ओपनर आउट हो गया, उसके बाद रमनदीप और सनी भैया ने अच्छी बैटिंग करी। 10 ओवर में हमारा 87 स्कोर था, उसके मिडल ऑर्डर बैट्समैन ने आज कुछ करा नहीं। उसके बाद हमारा 20 रन का टारगेट, जो हमने टारगेट सोचा था उससे 20 रन कम बने थे। उसके बाद बॉलिंग अटैक पे हमने पूरा जोर डाला था कि इनको ऑल आउट कर दें तो मैच जीत सके। उसके बाद फील्डिंग में हमने काफ़ी कैचेस छोड़े, उसकी वजह से आज हम मैच हार गए, नहीं तो मैच हमारे नाम था। कोई तारीफ के शब्द जीतने वाली टीम के लिए? सौरव और आगम ने, पहले उनके 2 विकेट बहुत जल्दी आउट हो गए थे और सौरव और आगम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, जो उन्होंने टारगेट पूरा करा और चेस मतलब रन टारगेट को पूरा करा और मैं अपनी टीम को वो मैच जिताया सौरभ गर्ग ने। चलिए हार्ड लक, आगे आप और बेटर करें। अगले संस्करण में इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग के आपका इंतजार करेंगे। क्रमवार सारे खिलाड़ी आगे आए। विकास वेंदिया, विजेंदर, विक्रम, क्रमवार सबके एक एक करके सभी खिलाड़ी आगे आए। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में वेस्ट जोन ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले 3 में से 2 जीत दर्ज की। सेमीफाइनल मुकाबला भी शानदार तरीके से जीता नॉर्थ जोन के खिलाफ। मुदस्सर खान और उनके साथियों को परास्त किया सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत शानदार तरीके से। सबसे बड़ा चेज दरअसल वेस्ट जोन ने किया था, 177 रन बनाए थे नॉर्थ जोन ने, और यह प्रतियोगिता का सबसे बड़ा चेजिंग स्कोर है जो वेस्ट जोन ने हासिल किया। लेकिन फाइनल मुकाबला उनके नाम नहीं रहा। फाइनल मुकाबला जिस टीम के नाम रहा, मैं उनका नाम पुकार रहा हूं। जी हां, इंडियन रूरल टी20 क्रिकेट लीग की विजेता हैं ईस्ट जोन। मैं चाहूंगा एक एक करके सभी खिलाड़ी आएं और अपना मोमेंटो पहले हासिल करें, फिर आपके कप्तान को हम आमंत्रित करेंगे। एक एक करके सभी खिलाड़ी आगे आएं। सुरेश कुमार और उनके साथी, सुरेश आगे आए। तरुण, अनिल काला, अगम कोहली, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कई ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र लगातार होता रहा है और तारीफ करनी होगी इन सभी खिलाड़ियों की। सुरेश कुमार, अगम कोहली ने आगे आकर लीड किया टीम को और जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित किया बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, और यही वजह है कि ईस्ट जोन ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता को अपने नाम किया। पहला मुकाबला गंवाया था ईस्ट जोन ने, लेकिन उसके बाद पलटकर वापस नहीं देखा। लीग के दोनों मुकाबले जीते, सेमीफाइनल में साउथ जोन को बढ़िया तरीके से परास्त किया और फाइनली इस प्रतियोगिता को जीता। एक एक खिलाड़ी दरअसल बधाई का पात्र है, चाहे वो 16 वर्षीय सौरव गर्ग हो या सुधीर। ये सभी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय सभी को दिया। डीडी स्पोर्ट्स के प्रसारण के जरिए दुनिया भर में इनकी प्रतिभा का परिचय हुआ और क्रमवार तेजी के साथ आए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा कप्तान, कैप्टन ऑफ द टीम सुरेश कुमार, ईस्ट जोन। प्लीज आए, आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सुरेश, पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, आपने जिस तरीके से जीत दर्ज की, पहली हार लेकिन उसके बाद लगातार जीत।
थैंक यू सर। हमारे जो पहला मैच हम लॉस कर गए थे क्योंकि लड़के टीम नहीं थी, लड़के अलग अलग एकेडमी में खेलते थे और इकट्ठे हुए। उसके बाद प्रैक्टिस की और मैच आगे वाले मैच सारे मैच हमने जीते हैं, जिसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स आगम कोहली है, अनिल काला है, तरुण है। बहुत अच्छी इन्होंने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर एक मैच में करी और हम फाइनल जीते हैं। आपकी जीत की चर्चा लंबे समय तक रहेगी। इन शॉर्ट आप बता दें इस प्रतियोगिता से कितना फायदा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को? हमारे जो ग्रामीण लड़के हैं और शहरों, छोटे छोटे शहरों से आए हुए लड़के, उन्हें एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, लाइव खेलने का मौका मिला है, ऐसे ग्राउंडों में, इंटरनेशनल ग्राउंडों में खेलने का मौका मिला है, जिनकी बदौलत हमारे पीयूष राणा सर, नरेश सर और हमारे पंकज सर, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, लड़कों को लाइव खेलने का मौका मिला है। आपको बहुत सारी बधाइयां, आपके खिलाड़ियों को बहुत सारी बधाइयां, उन प्रतिभाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने बढ़िया काम किया। लेकिन आपकी टीम में एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने सभी को प्रेरित किया। मैं अगम से जरूर गुजारिश करूंगा, आए दो शब्द कहें, बताएं हमें कैसा रहा कुल परफॉर्मेंस। अगम, सबसे पहले तो बधाइयां, बढ़िया काम रहा, 3 अर्धशतक आपकी तरफ से आई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। कुल मिलाकर कैसा रहा ये टूर्नामेंट? सर बस टूर्नामेंट बहुत अच्छा था और जो है यहाँ पे आईटीसीएफ ने एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी दी थी सीनियर प्लेयर्स को कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, तो एक वो थोड़ा सा प्रेशर होता है कि सभी जितने जूनियर लड़के अभी जो आईसीए के थ्रू आए हैं वो लोगों को, आईपीसीएल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वहाँ पे सब मैच्योर खिलाड़ी आते हैं, सब लोग जो है रणजी ट्रॉफी स्टेट क्रिकेट खेल रहे हैं वो आते हैं, और सर जो पीयूष राणा सर है फाउंडर सेक्रेटरी आईटीसीएफ, तरीके से मौका देते हैं सभी प्लेयर्स को। और जो ये कहेंगे दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अम्ब्रेला, एक छतरी है ये आईटीसीएफ, जिसके अंडर में जो है आईसीए, आईपीसीएल, आईआरसीएल, और अब जो है 6 तारीख से हम फिर वापस यहाँ से मुंबई के लिए निकल रहे हैं, एमआरसीएल जो है महाराष्ट्र रूरल प्रीमियर लीग। तो ये जो एक टूर्नामेंट को कराने का पूरा उद्देश्य होता है, उसके पीछे सिर्फ यही होता है कि जितने भी छोटी जगहों से जो टैलेंट्स हैं उनको ऊपर लाया जाए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो टैलेंट्स जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप कहीं पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, आज 16 साल हो रहे हैं मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए, आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बस जो स्कोर कर रहे हैं वो आप घर जाके अपने मदर फादर को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, बट व्हेन यू विल प्ले लाइव ऑन टेलीविजन, ये आपको ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है, इसमें आपका स्कोर हर एक जन एक्सपोज हो रहा है, हर एक जन का ये पता चल रहा है कि इसमें कितनी प्रतिभा है, हर एक सिलेक्टर स्टेट का बैठ के इसको मैचेस देख रहे हैं, इंटरनेशनली काउंटी क्रिकेट्स वाले इसको मैच देख रहे हैं, नोबडी नोज कब कहाँ से कॉल आ जाए, बिकॉज नाउ-अ-डेज मीडिया इतनी ऊपर हो चुकी है, फेसबुक आ चुका है, तो आपको हर जगह से कहीं से भी कॉल आ सकता है, और उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए पीयूष राणा सर को मैं बधाई देना चाहूँगा, नरेश सर आईसीए के डायरेक्टर, हमारे राजेश सर जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के कराने के लिए एक एक बच्चे को होटल में खाने से लेके, उनके स्टे से लेके, हर एक फैसिलिटी के बारे में, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर एक चीज़ के बारे में अप टू डेट रखा है, मैच शेड्यूल्स को लेके कि आपका मैच इतने बजे, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन ग्राउंड, तो ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हर चीज़ होती है। मोर और लेस, लास्ट नॉट द लीस्ट, डीडी स्पोर्ट्स, जिन्होंने, हम देखते आ रहे हैं कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो है, सेट मैक्स ले लीजिए, आईपीएल आ रहा है 8 तारीख से, 10 क्रिकेट हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, दे आर ऑल बिग शॉट्स, बट स्टिल डीडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल, बिकॉज डीडी इज़ द नेशनल चैनल ऑफ इंडिया, और ये चैनल जो है वो जब तक रहेगा तब तक हिंदुस्तान में हर जगह छोटी प्रतिभाओं को ऊपर आने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से। एक बात आपकी तरफ से मैसेज जाएगा उन सभी बच्चों के लिए, परफॉर्मेंस एक बड़ा काम किया करता है, अगम कोहली यानी बेस्ट परफॉर्मेंस, यहां भी आप शुरुआत से लेकर अंत तक छाए रहे, सब मैचेस आपने अपनी कुव्वत पर निकाले, दम पर निकाले, परफॉर्मेंस पर फोकस करने के लिए क्या मैसेज देंगे बच्चों को? सर बस कुछ मैसेज नहीं देना चाहूँगा, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, दिन का खेल होता है, बस सबसे मेन चीज़ है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, प्रैक्टिस सेशंस इज इम्पॉर्टेंट, बट साल भर में एक ही चीज़ कहूँगा, जितना मैच खेल सकते हो, जितना भी आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जो क्रिकेट हो चुका है वो जो है प्रोफेशनली हो चुका है, आपका क्रिकेट का स्टाइलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मेंटल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, और अगर आप फिजिकली फिट है तो आप अंदर क्रिकेट अच्छा ही खेलेंगे। मेरी टीम में कुछ यंग लड़के थे, उनका एक ही कहना था, भैया हम फर्स्ट टाइम है, हमारा लाइव है। मैंने कहा बेटा एक चीज़ सोच के खेलना कि आप जिस तरीके से अपने क्लब का मैच खेलते हो, ये सोचो कि आज मेरा एक क्लब का मैच है, नॉर्मल किसी तरीके का प्रेशर मत लो। सौरभ आया, भैया बोले मैं क्या करूँ, मैंने कहा बेटा एक ही चीज़ करनी है, सिर्फ बॉल को बैट पे मीट करो, बॉल जिस डायरेक्शन में जाएगी हमें रन लेना है, देयर इज
nothing called it as style. Virat is one of the best stylish player in the world. On the other hand, MS Dhoni is someone जिनका स्टाइल नहीं है, but MS is वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर. उसका माइंड इतना फिट है कि उसके माइंड को बीट करने के लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़िए पूरा विश्व लग गया, बट उसने अपने सिंगल हैंडेडली टीम को सेमीफाइनल पहुंचाया जहां लोगों को कहीं भी नहीं लग रहा था. 7 मैच ऑन द ट्रॉट जीती इंडिया. वहां पे कहीं ना कहीं जो है मेंटली फिटनेस सामने आती है. उसी तरीके से सौरभ ने वो मेंटल फिटनेस बनाई है और उसका मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा नरेश सर को, जिन्होंने ICA के एक बहुत छोटे से जगह होने वाले MP के टूर्नामेंट से सौरभ को खोज के लाए और सौरभ ने उनकी जो है आशा है उसके ऊपर पूरा जो किया उसके लिए वो क्रेडिट देना चाहूँगा. और आने वाले समय में बस यही कहना चाहूँगा, जितने मेरे सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को जो है बैक करें, और जूनियर्स को बैक करेंगे तो निश्चित रूप से ये ITCF बहुत जल्दी आपको IPL की भी ऊपर मिलेगी. चलिए, आपको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं. अगम, आपने बड़ी अच्छी बातें की. दरअसल होता यही है, मानसिक दृढ़ता अपने आप में बड़ा काम किया करती है. मेंटली फिट होना एक बड़ा काम, उसके जरिए बड़े टारगेट हासिल किए जाते हैं. मैं एक व्यक्तित्व से जरूर बात करना चाहूंगा जिन्होंने मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया. 2001 में ITCF का गठन हुआ था. 2015 तमाम सारी ऊंचाइयां स्पर्श की हैं. बहुत बहुत बधाइयां आपको पीयूष राणा जी. बधाइयाँ DD स्पोर्ट्स को, मेरी ITCF के टीम को, और मेरे सबसे अच्छे जो मेरा सबसे अच्छा ऑफिशियल है पंकज धवीजा, और आने वाले सभी प्लेयर को, ITCF की जो यूनिट्स हैं उनको, जो हमें टाइम टू टाइम अपने बच्चे प्रोवाइड करते हैं. हमारे ऑफिशियल्स नरेश है, बंटी है, सभी लोग जो है डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं, तो उसका नतीजा आपके सामने है. चलिए, बहुत शॉर्ट में आप बताइए इस प्रतियोगिता से क्या हासिल हुआ है ITCF को. हिंदुस्तान में क्रिकेट मजहब है, खेल है, धर्म है, सब कुछ है. ग्रामीण सेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है. ग्रामीण सेक्शन के लिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे ऑफिशियल्स जो सरप्लस हैं आके अपना टैलेंट को शो करें, और ऊपर हमारे ITCF इंडिया की तरफ से नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ इंडिया और IPCL के लिए और भी लाइव टेलीकास्ट के लिए अपने परफॉर्म करें, और बच्चे नौकरियां पाएं, और क्रिकेट जितनी क्रिकेट खेलें उनकी क्रिकेट के मुताबिक उनको फ़ायदा मिले, जॉब मिले, छुट्टी मिले, और उनको पैसा अर्न करने का मौका मिले, इज्जत मिले, मान मिले. क्रिकेटर्स के लिए शॉर्ट में कोई मैसेज देंगे आप? क्रिकेटर्स के लिए यही एक मैसेज है कि ITCF इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है. गांव देहात के बच्चे क्लब्स में जरूर खेलें. क्लब की क्रिकेट एक प्रैक्टिस की क्रिकेट होती है. ITCF इंडिया की क्रिकेट एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रिकेट है, जिससे आपको नौकरी पाने का, छुट्टी का, इज्जत का, मान का और पैसा भी अर्न करने का हर चीज़ है. ये कंप्लीट क्रिकेट है आफ्टर द BCCI. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं. पीयूष राणा, फाउंडर सेक्रेटरी जनरल ITCF, 2001 से सफर प्रारंभ किया. 2015 में एक नई कोशिश, नया सपना जो साकार हुआ, इंडियन रूरल T20 क्रिकेट लीग पहला संस्करण. हम ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे विजेताओं को, तो इंडियन रूरल T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के विजेता ट्रॉफी लिफ्ट करें, उठाएं आकर्षक ट्रॉफी को. ईस्ट जोन सुरेश कुमार, अगम कोहली, सौरभ गर्ग, प्रशांत, अनिल काला, कई ऐसे नाम हैं जो कहीं शायद जबान पर पूरी तरीके से नहीं आए लेकिन जहन में बस चुके हैं. DD स्पोर्ट्स के सीधे प्रसारण के जरिए दुनिया भर में इनकी पहचान बनी है. छोटी छोटी पारियां लेकिन प्रतिभा संपन्न. तो बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया. फाइनली सबसे ऊपर का स्थान हासिल किया सुरेश कुमार एंड अगम कोहली. ईस्ट जोन ने इस मुकाबले को जीता. विजेता यहां पर सम्मानित हुए. तो पुरस्कार वितरण यहां पर समाप्त होता है. अब चलते हैं वापस कमेंट्री बॉक्स, जहां पर मौजूद हैं मनोज दत्त और दीपक चौहान. IRCL season 1, and this has certainly given a very strong platform for the young and budding cricketers. And as far as the DD Sports is concerned, they have given every encouragement as far as the giving platform is concerned.
ये है दूरदर्शन नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स।